तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को हल्का बंदियों से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल के लिए मदऊ किया। तमिलनाडु के वजीर T.K. नेहरू की क़ियादत में DM के वफ़द ने दिल्ली में रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके उन्हें बाज़ाब्ता दावत दी। स्टालिन ने 22 तारीख को एक इजलास तलब किया है, जिसमें जुनूबी रियासतों के वज़राए आला और साबिक वज़राए आला हल्का बंदियों के असरात पर तबादला ख्याल करें। Mr. Tamil Nadu Chief Minister Stalin has sent his delegation to second meeting in Chennai regarding Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Limitation for South. This is not delimitation. This is a limitation for South. At any cost, we are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, even Karnataka also they have defeated. They don't have any representation in Andhra Pradesh. That is why they wanted to settle a score. This is called vendetta politics. Government of India, headed by Bharatiya Janata Party or NDA, conspiring against the South. I am welcoming Mr. Stalin. He has initiated this discussion. He is going to organize a meeting. Congress Party, in principle, have agreed to attend this meeting. Then finally I have to take a permission from my High Command. Then definitely I will attend that meeting. गवर्नर के खिताब में किसानों के बारे में बात करते वक्त तकनीकी मसले की वजह से रायतो वेदिका का जिक्र किया गया। वजीर पूनम प्रभाकर ने वजाहत की कि हमने उन वेदिकाएं की तामीर का दावा नहीं किया क्योंकि अवाम जानते हैं कि ये पिछली हुकूमत ने बनाई थी, इसलिए हम गैर जरूरी तौर पर उसका सेहरा अपने सर नहीं लेना चाहते। पेजी नंबर 6 गवर्नर ప్రసంగంలో ఐటమ్ నెంబర్ 15 అత్యాధునిక ఆడియో విజువల్ మీడియాను సమకూరుస్తూ మొత్తం 566 రైతు వేదికలు ఏర్పాటు చేశారు। రైతు వేదికలు మేము చేసిన వాళ్ళే వీడియో విజువల్స్ ఇక మీరు అట్లా అనుకుంటే మీరు అటు మేము రైతు వేదికలు కట్టినామని మేము చెప్తలేము। ఆ రైతు వేదికలు మాకంటే ముందే నిర్మాణమైనా అది అందరికీ తెలుసు, మేము చెప్తే మాత్రం ప్రజలు గమనించారు। అందులో కూర్చొని రైతులకు సంబంధించి ఏదైనా సాంకేతికమైన అంశం ఇవ్వాలంటే విజువల్ మీడియా దాన్ని ఏర్పాటు చేసినామని చెప్పినారు। దాంతో రైతు నేస్తం కార్యక్రమాన్ని అన్ని 532 గ్రామీణ మండలాల్లో అమలు చేస్తూ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అని చెప్పినాం। అట్లా మీరు దాన్ని లేని దాన్ని కూడా అంటగట్టి అట్లా మేము చెప్పుకుంటాం ఏం కాదు, దయచేసి వాస్తవం చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి। BRS MLA जगदीश रेड्डी को बजट इजलास से स्पीकर ने मुअत्तल कर दिया। जगदीश रेड्डी की मुअत्तली के खिलाफ BRS कायदीन ने अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। पार्टी रहनुमाओं ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए स्पीकर के अक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दिया। इस मामले पर BRS कारकुनों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। Under Sub Rule 1 and Rule 2 of Rule 340 of the Assembly Rules, that Sri Guntakanda Jagdishwar Reddy, member named by the Speaker, be suspended from the services of the House for remainder of the session. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried, and the member named by the Speaker is suspended from the services of the House for remainder of the session. Justice. We want justice. Justice. We want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. జై తెలంగాణ Jai Telangana. జై తెలంగాణ Jai Telangana. ప్రభుత్వ అహంకార వైఖరి నశించాలి. ప్రభుత్వ అహంకార వైఖరి నశించాలి. ప్రభుత్వ అహంకార వైఖరి నశించాలి. we want Justice.
क्या हमने कभी किसी लीडर को दूसरों की मौत की ख्वाहिश करते देखा है? तेलंगाना के साबिक वजीर आला के सीआर, जिन्होंने 10 साल तक रियासत की क़यादत की, उनके बारे में ये कहना कि उन्हें मुर्दा खाने भेजूंगा बिल्कुल नामुनासिब है। ये बात एमएलए तुलसानी श्रीनिवास यादव ने कही और ऐसे बयानात की सख्त मजम्मत की। నిన్న కూడా చూస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు, స్ట్రేచర్ అని స్ట్రక్చర్ మీద వండుకుండని, తర్వాత మార్చూరి పోతాడనే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి ఒక మహానాయకుడు, 10 సంవత్సరాలు అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన అందించినటువంటి కేసీఆర్ని పట్టుకొని మార్చూరికి, అంటే ఎవరైనా కానీ, ఏ నాయకుడు, ఎంతటి నాయకుడైనా కానీ ఎదుటివారి చావును కోరుకునేటువంటి నాయకుడిని ఎక్కడైనా చూస్తామా మనం? ఈ రోజు ఏంటంటే ప్రతిదీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. ఇప్పుడు మీడియా పాయింట్ దగ్గర కూడా మేము మాట్లాడనీకి వస్తే అక్కడ కూడా మాట్లాడనీయకుండా వాళ్ళందరూ ఒకళ్ళనికి ఒకళ్ళు వచ్చి మాట్లాడేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం కూడా మీరు చూస్తారు. रियासत में आवारा कुत्तों के मसले पर कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए बीआरएस लीडर पाडी कौशिक रेड्डी ने सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम की बद्दुआएं रेवंत रेड्डी को कुत्तों की मौत मारेंगी। कौशिक रेड्डी के इस बयान पर सियासी हलकों में शदीद बहस छिड़ गई। ప్రజలు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే, నువ్వు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు హామీలుతో ఏ విధంగా అయితే నువ్వు ప్రజలకు ఇచ్చినావు, ప్రజలని నమ్మించినావో, నిన్ను నమ్మి ప్రజలు ఓటేసినందుకు ఇవాళ ప్రజలు పెడుతున్న శాపనార్థులకు కుక్క సావు చచ్చేది రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గ్యారెంటీగా చెప్తా ఉన్నాను, ఇది ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు పెట్టే శాపాలకి కుక్క సావు చచ్చేది రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి చెప్పక తప్పదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి ఉండి సిగ్గు లేకుండా, శరం లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇలా ఎదుటి ఒక ఎల్ఓపి లీడర్ని చావుని కోరుకుంటారా అండి? ఎవరన్నా? నాకు అర్థం కాదు. ఎల్ఓపి లీడర్ చావు కోరుకుంటే ఎంత సిగ్గుచేటు! ఓ ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నాడు చావు గురించి మాట్లాడతాడా? నువ్వు చావాలని, ఇంతకుముందు ఇంత 100 మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, 100 మంది ఎల్ఓపి లీడర్లు లేరు, కానీ ఎవరు కూడా ఒకరు చావాలని కోరుకోలేదే. ఇంత దరిద్రంగా ఉంటుందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇలా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే 3 లక్షల పిచ్చి కుక్కలు ఉంటాయి. ఆ పిచ్చి కుక్కలకు అధ్యక్షుడే రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा, हिंदू अपने त्यौहार मनाएं तो रेवंत रेड्डी को क्या तकलीफ होती है। राजा सिंह ने मजीद सवाल किया कि क्या होली का जश्न मनाने का तरीका भी हुकूमत तय करेगी। उनके इन बयानात पर सियासी हलकों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। जब से तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, तब से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू फेस्टिवलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, या दीपावली हो या होली हो। अभी अभी तेलंगाना की पुलिस द्वारा एक तुगलक फरमान जारी हुआ। उस फरमान में यह लिखा हुआ है कि कोई भी ज्यादा ग्रुप में ना घूमे, ज्यादा बाइक पे ना घूमे, और एक समय तक ही होली मनाए, और किसी अन्य व्यक्तियों पर कलर ना डालें। अगर कोई भी हमारे आदेशों का अगर उल्लंघन करेगा तो उन पे हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा एक निजामिया फरमान तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने निकाला है। तो मैं उन मुख्यमंत्री को, उन पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहूँगा, रमज़ान के 30 दिन होते हैं, और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, किस प्रकार से ग्रुप बनाकर घूमा जाता है? क्या यहाँ तेलंगाना के जो 90 निज़ाम है रेवंत रेड्डी जी को क्या नहीं दिख रहा है? क्या पुलिस के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है? क्या कितना न्यूसेंस होता है पूरे 30 के 30 दिन हैदराबाद में? क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई फरमान निकालने का क्या विचार नहीं आया है? लेकिन नहीं, हमारी जो कांग्रेस है वहाँ पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है, और हमारे तेलंगाना राज्य की
तेलंगाना में 15 मार्च से आधे दिन के स्कूल का निजाम नाफिज। तेलंगाना हुकूमत ने 15 मार्च से आधे दिन के स्कूलों के अहकामात जारी किए हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूलों का वक्त मुकर्रर किया गया है। जिन स्कूलों में 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे वहां दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक क्लासेस चलेंगे। 24 अप्रैल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी। आंध्र प्रदेश के साबिका दौर के बिजली बहरान को याद करते हुए वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने एक वाकया बयान किया। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा के दौरान रात 12 बजे वो निजामाबाद के एक गांव पहुंचे जहां कुछ किसान सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठे थे। उनमें एक बीटेक का तालिब इल्म भी था। इस तालिब इल्म ने कहा कि वो छुट्टियों में अपने वालिद की मदद के लिए आया है और रोजाना अखबार में सांप के काटने से किसानों की मौत की खबरें पढ़कर खौफजदा है। चंद्राबाबू ने कहा कि इन अल्फाज ने उन्हें बेहद अफसुर्दा कर दिया और इस वक्त बिजली के शदीद मसाइल। నాకు ఇప్పుడు కూడా నా కళ్ళల్లో జ్ఞాపకం ఉంటుంది. 2011-12 ప్రాంతంలో నేను పాదయాత్ర చేశాను. నడుచుకుంటూ పోతుంటే రాత్రి 12 గంటలు 1 గంటకు ఆ ప్రాంతంలో నిజామాబాద్లో ఒక ఊర్లోకి వెళ్ళాను. దారిలో పోతా ఉంటే రోడ్డు మీద కూర్చొని చలిమంట వేసుకుంటున్నారు. జనవరి ఫిబ్రవరికి అంతా మీకు ఐడియా ఉంటుంది. అక్కడ పోయినప్పుడు నేను కాసేపు మాట్లాడదామని చెప్పి మాట్లాడిన సమస్యని, సార్ చాలా బాధ ఉంది మాకు, ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుందో తెలియదు, అందుకని రాత్రి జాగారం చేస్తున్నాం అని చెప్తూ వాళ్ళలో కుర్రాడు, సార్ నువ్వేం చేస్తావు ఆయన కుర్రాడు బాబు, నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను, ఏంటా ఎందుకు వచ్చావురా అన్నాడు. సార్ మా నాన్న జీవితం అంతా కూడా పాపం నా కోసం చదివించడానికి కష్టపడుతున్నాడు. ఎవ్రీడే వచ్చి ఇక్కడ ఉండేవాడు మిషన్ వేయడానికి. నేను హాలిడేస్లో వచ్చాను. కనీసం మా నాన్నకు ఒక 2 రోజులు రెస్ట్ ఇవ్వాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పి. అప్పుడు నేను అడిగాను, ఏంటి ధైర్యంగా ఉన్నామంటే, లేదు సార్ భయం వేస్తూ ఉంది, పేపర్లో వస్తున్నాయి, పాములు గరుస్తున్నాయని, చీకటి ఉంటుంది, పంప్ సెట్ అయిపోయినప్పుడు పాములు గరుస్తున్నాయని, భయంగా పోయి వేస్తుందని నాకు కుర్రాడు చెప్పినప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను. सैयद आबिद अली 83 साला जो हैदराबाद के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक और साबिक भारतीय ऑलराउंडर थे का बुध के रोज अमेरिका में इंतकाल हो गया। आबिद अली ने हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 212 मैचेस खेले और 397 विकेटें हासिल की। आबिद अली ने दिसंबर 1967 में एडलीड में भारत की नुमाइंदगी शुरू की और अपना आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 1974 में दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बाबा नगर में 62 साला दुकानदार जाकिर खान नौजवानों के हमले में जाँ बहक हो गए। दुकान के सामने कुर्सियां रखने पर मामूली तनाजा हुआ, जिसके बाद पान शॉप के नौजवान मालिकान ने उन्हें शदीद ज़द-ओ-कूब किया। जाकिर खान जो पहले ही दिल के मरीज थे, हमले की ताब न ला सके और अस्पताल ले जाने से कब्ल ही दम तोड़ गए। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ये शॉप किराने का शॉप ये लोग शॉप साल से हमारा कभी कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये तो इनके दुकान के सामने चेयर डाल के बैठे थे, तो हटाओ यहाँ कहीं के बैठे बोले तो वो मामले में लड़ाई शुरू हो गया। वो समझा रहे, 1 से 2 बार वार्न करे, सामने बैठ के स्मोकिंग कर रहे, बच्चे आए तो बच्चों को भी मारे। बच्चा कहाँ है, बच्चा जुबेर जीशान दोनों को मारे, दोनों गिर गए कुर्सी के ऊपर, मारे बोल के कहाँ है जीशान जुबेर अपोलो में। अच्छा बोल, इन लोगों के बहुत कंप्लेन है, रात भर चालू रहता सर।
ये बताए नीचे कुर्ता बहुत केसेस नहीं हमारे मगर पूरे दब जा रहे हैं वो केसेस। सर मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। डेली मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, आज फिजिकली भी मार दिया। तो सिगरेट आप पीना बच्चे आगे पूरा जमा हो जाना फेस करना पड़ेगा। अब दुकान डाला गरीब आदमी तो चलाने के वास्ते। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन फरोख्त करने के खिलाफ तलबा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने खबरदार रेवंत रेड्डी, ये कैसी हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है, ये लूट मार की हुकूमत है जैसे नारे लगाए। तलबा ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त मुखालफत करते हुए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना सीएम इदेमी राज्यम, इदेमी राज्यम, इदेमी राज्यम। हैदराबाद में चोरी की अनोखी वारदात, चूर पुलिस के जूते और चप्पलें भी ले उड़े। हैदराबाद के मुसारिम बाग ईस्ट प्रशांत नगर में चोरों ने अनोखी वारदात अंजाम दी, जहां उन्होंने कई अपार्टमेंट्स में घुसकर सिर्फ जूते और चप्पलें चोरी की। ये वाकया आधी रात के बाद पेश आया, जब चोरों ने माइक्रो हेल्थ समेत 4 अपार्टमेंट्स में घुसकर वहां मौजूद जूते और चप्पलें लेकर इट गए। हैरत अंगेज तौर पर एक अपार्टमेंट में रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर और खातून सब इंस्पेक्टर के सरकारी जूते और चप्पलें भी चोरों के निशाने पर आ गई। सुबह जब रिहायशियों ने बाहर आकर देखा तो उनके जूते और चप्पलें गायब थीं, जिससे वो हैरान और परेशान हो। గేట్ కాజ్ పక్కన ఉంటే 2 అవి 2 ఉంది నా సార్ వాళ్ళకి రబ్బర్ చెప్పు ఈ 2 జతలు ఉంది కాదు మొత్తం ఎక్కువ పిల్లలు పొద్దున్న పూట స్కూల్ తయారయ్యారు, షూస్ కూడా లేకుంటారు. हल्का असेंबली नामपाली के इलाके मेदीपुट्नम में सेनेट एनिस कॉलेज के सामने एक हॉस्टल में लिफ्ट में फिसने से 5 साला लड़के की मौत। वाकये की इत्तला मिलते ही AIMIM के लीडर डॉक्टर कासिम ने मकाम वाकया पहुंचकर लड़के के घर वालों से मुलाकात की और हॉस्टल के इंतजामिया के खिलाफ लापरवाही पर कार्रवाई करने का तयक्कुन दिया। लड़के को पहले ओलिव अस्पताल लिए जाया गया था, फिर इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल में सीएस साहब हॉस्पिटल में PSU वाली ओलिव हॉस्पिटल है ना। हाँ हाँ बच्चा जिंदा है अभी। चेक करने के हॉस्पिटल चेक करना पड़ता, सब लेके गए ओलिव हॉस्पिटल माधुर का। हाँ वही है सीएस साहब। आप इंसिडेंट होने के बाद आप लोग बाद में बॉडी अटका था, दिए फोटो दिया ये वो मैं तो वो देखना इसका फोन लेके क्या डीवीआर ऊपर सामने ऊपर ऊपर तो बच्चा कहाँ आप देखिए कहाँ था बच्चा, यहाँ पे ग्रिल के पास यहाँ पे ऐसा अटक गया था बच्चा, ये बीच में दोनों के बीच में ऊपर एक खून का निशान दिखाई दे रहा है ना, उसमें ऐसा दर्द है। और तो उन्हें गया कैसा पूछ रहे। हाँ नहीं ये ऊपर गए था, तो ये डोर कैसा खुला थे कोई नहीं था, कोई नहीं अक्सर खुलता डोर नहीं लिफ्ट ऊपर हाँ, तो ये जब ऊपर जा रही है हेड पे थी लिफ्ट राइट, डोर खुला है नहीं लिफ्ट यहाँ पे थी डोर खुलता है, यहाँ पे नीचे से भी ओपन होता डोर, हाँ ऐसा बीच में भी ओपन होता लॉक हो जाता है जी।
अब वो बच्चा या सुन के चले गया होगा यहाँ पे, वो पूरा बंदरा भी नहीं करा के चले गए। अपार्टमेंट वाले के बारे में बोला, बोलने की नहीं है, हमारे को आने को बाद में बोलेंगे। हाँ बिल्कुल डन, अभी नहीं बोलना है मुर्शिद साहब आप जरा पीछे आइए। कैमरा पूरा चेक होगा, बच्चा कैसा ध्यान और ये क्या है पूरा चेक करने के लिए आया मैं, पूरा चेक करना और गलत है तो आपको पूरा इंसान देगा, वो ले जाएगा। बच्चा नहीं मिलता मगर इंसान को मिलना बच्चा नहीं मिलता, उसका अफसोस हमारे भी है, ये किसी के साथ नहीं होना, मगर इंसान को मिलना उसका आत्मा को तो शांति मिलना नहीं, तो उसके लिए देखने आया हूँ। देखना पूरा कैमरा चेक करेंगे, गलती है बराबर जेल को जाएगी, वो देखने आया हूँ, वो देखना। आप इन्होंने कितने महीने से यहाँ पे? 1 महीना हुआ, 1 ही महीना सिपनगर लिमिट्स में एक मुस्तफ़ा हॉस्टल है। ये हॉस्टल पे एक नेपाली फैमिली श्याम और केसरी ये वॉचमैन काम कर रहे हैं। इसको एक बच्चा है, एक बच्ची है। कल रात को 10 बजे को एक इनके छोटा बच्चे इसकी सुरेंद्र है 4 इयर्स बच्चा, उन्हें ये लिफ्ट में क्रश हो गया। उसकी वो टाइम पर आजू बाजू वाले देख के उन्हें अम्मी देखा वो डेड बॉडी एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के नीचे में क्रश हो गया। इमीडिएटली उनकी डेड बॉडी बाहर निकाला, उन्हें वो टाइम पर के क्रश हुआ। इसके गलत क्या है और कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ह्यूमन एरर्स है, वो पूरा चेक करके इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत है तो अभी केस कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता। सर हॉस्टल का कोई परमिशन भी नहीं है ना इनके पास, ना ट्रेड लाइसेंस है, और अभी ये टाइम पर अलग है। ये बच्चे के लिए देख रहा हूँ, उसके लिए वो मैं चेक करता हूँ। विशाखापट्टनम में आंध्रा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नाकिस खाने के खिलाफ तलबा ने आधी रात को एहतजाज किया। तलबा का इल्जाम है कि हॉस्टल में मुनासिब और मियारी खाने का इंतजाम नहीं किया जा रहा। इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के बाइस कैंपस में कशीदगी देखी गई। भोपालपल्ली जिला के महादेवपुर मंडल में कालेश्वरम के करीब एक रेत से भरी लारी बेकाबू हो गई। लारी तेजी से एससी कॉलोनी में एक घर में घुस गई, जिससे मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा सानहा टल गया।
इस वाक़ये ने मकामी लोगों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। वजानगरम जिला के बोबेली मंडल के पेंटा ZP स्कूल के हेड मास्टर रमन ने तलबा की तालीमी कमजोरी पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि न हम तलबा को मार सकते हैं, न डांट सकते हैं और न ही कोई सख्ती कर सकते हैं। इसी बेबसी के एहसास में हेड मास्टर ने खुद ही अपने सर के बाल मुंडवा कर खुद को सजा दी। ये वाकया इलाके में हैरत और बहस का मौजू बन गया। మాదైతే చెప్పండి, మీ అందరికి చిన్న దండం పెట్టి పడుకుని పెట్టేస్తాను. మీ అందరికి దండం పెట్టేసి వదిలేస్తాను, లేదంటే ఇలా నేను తీసుకుంటాను. మరి గుంజలు అయినా మీకు అందరికి కూడా మీ నేనే పనిష్మెంట్ వేసుకుంటాను. इम्तिहान के दौरान पंखा गिरने से इंटर की तालिबा जख्मी। करीमनगर का वाकया। करीमनगर के सिसरा जूनियर कॉलेज में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां इंटरमीडिएट साल दुवम की तालिबा श्वानोता इम्तिहान लिखते वक्त हादसे का शिकार हो गई। इम्तिहान के दौरान कमरे में लगा छत का पंखा अचानक कमजोर आग से टूटकर गिर गया, जिसकी पंखुड़ियां तालिबा के चेहरे पर लगें, जिससे इसकी नाक और नक के नीचे के हिस्से में जख्म आए। वाकया होते ही कॉलेज के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए तालिबा को इम्तिहानी मरकज में मौजूद मेडिकल कैंप मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई इलाज फराहम किया गया। बाद अज़ां इसे दूसरे कमरे में बिठाकर इम्तिहान मुकम्मल करने के लिए इजाफी 30 मिनट दिए। मैं आपको और आपके जरिए पूरे मुल्क और रियासत के अवाम को होली की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौरासिया समाज ने अज़्म किया है कि हम सब मिलकर पान पर चर्चा करेंगे। ये बात मुअज़्ज़ज़ कौमी सदर जनाब अखिलेश यादव जी ने कही। आज होली का त्योहार है। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये जहां त्योहार रंगों का है, वहीं हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, जो खुशियां लेकर के आता है। गुजियों का त्योहार भी है। हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर करके इस त्योहार को मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है, उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी कैसे हो, उसके बारे में जो चर्चा हुई, मैं उन सब चौरसिया समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पार्टी कार्यालय में आकर के शिव दयाल सिंह चौरसिया जी को याद किया। वहीं चौरसिया समाज ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के अब पान पे चर्चा करेंगे। पान पे चर्चा होगी और उनके जो आर्थिक या कारोबार या रोजगार से जुड़ी हुई जो बातें हैं, खेती के बराबर खेती का हक मिले उन्हें,
पान को लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके कारोबार के लिए, स्थान के लिए, जगह से लेकर के और कुछ उपलब्ध कराना हो, उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है और हमने भरोसा दिलाया है कि आने